हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो से हम क्लास 11th बायोलॉजी एनसीईआरटी स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये वीडियो जो है बेसिकली एनसीईआरटी की उन स्टूडेंट्स के लिए डेडिकेटेड है जो ट्रैवल करते हैं और बीच में टाइम मिलता है बट बुक खोल के नहीं बैठ सकते, राइट। क्योंकि ट्रैवल करते हुए मेट्रो में जा रहे हो, बस से जा रहे हो, तो बुक खोलना पढ़ना थोड़ा ऑकवर्ड लगता है। तो अगर आपके पास हेडफोन्स है तो आप एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन जो वीडियो मैं बना रही हूँ आप इसे देख सकते हो, सुन सकते हो, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन में हेल्पफुल रहेगा। मैं इस वीडियो में क्लास 11th का यूनिट 1 स्टार्ट करने वाली हूँ, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। ओके, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड में टोटल 4 चैप्टर्स है। यूनिट 1 के 4 चैप्टर्स का नाम है, फर्स्ट चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड, सेकेंड चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, थर्ड है प्लांट किंगडम एंड फोर्थ है एनिमल किंगडम। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। Biology is the science of life forms and living processes. The living world comprises an amazing diversity of living organisms. Early men could easily perceive the difference between inanimate matter and the living organisms. Early men divided some of the inanimate matter, wind, sea, fire, etc., and some common among the animals and plant. A common feature of all such forms of inanimate and animate object was the sense of awe or fear that they evoked. The description of living organisms, including human beings, began much later in the human history. Societies which indulge in anthropocentric view of biology could register limited progress in biological knowledge. Systematic and monumental description of life forms brought in out of necessity detailed system of identification, nomenclature and classification. The biggest pain of such studies was the recognition of sharing the similarities among the living organisms both horizontally and vertically, that all present day living organisms are related to each other and also to all organisms that ever lived on this earth, was a revelation which humbled man and led to a cultural movements and for conservation of biodiversity. In the following chapters of this unit, you will get a description including classification of animals and plants from a taxonomist perspective. इस पैराग्राफ में सिंपली हमें यही बताया गया कि जो अर्ली मैन है उसने इन एनिमेट और एनिमेट मैटर में किस तरह से डिफ्रेंशिएट किया। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें फियर का सेंसेशंस होती है, वो रिस्पॉन्ड करते हैं अपने इन्वायरमेंट को, राइट। तो अब हम जो ये चैप्टर्स पढ़ेंगे आने वाले चैप्टर्स में हम जो है प्लांट एंड एनिमल्स की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे और ये सब चीज़ें जो है हम एक टेक्सोनोमिस्ट के पर्सपेक्टिव से पढ़ने वाले हैं। ओके, देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमारा जो चैप्टर स्टार्ट होने से पहले ये सर अर्नेस्ट मेयर है, इनकी बायोग्राफी दी गई है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको हम पढ़ लेते हैं। Born on 5th July 1904 in Camden, Germany, Ernest Mayr, the Harvard University evolutionary biologist who has been called the Darwin of the 20th century, was one of the 100 greatest scientists of all time. Mayr joined Harvard Faculty of Arts and Sciences in 1953 and retired in 1975, assuming the title of Alexander Agassiz Professor of Zoology Emeritus. Throughout his nearly 18-year career, his research spanned ornithology, taxonomy, zoogeography, evolution, systematics, and the history of philosophy and biology. He almost single-handedly made the origin of species diversity the central question of the evolutionary biology that it is today. He also pioneered the currently accepted definition of a biological species. Mayr was awarded the 3 prizes widely regarded as the Triple Crown of Biology: the Bolzan Prize in 1983, the International Prize for Biology in 1994 and the Crawford Prize in 1999. तो ये जो 3 प्राइज थे जो मिस्टर अर्नेस्ट मेयर को मिले थे ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, मेयर डाइड एट द एज ऑफ 100 इन द ईयर 2004। चलिए अब हम यहाँ से हमारा जो चैप्टर 1 है द लिविंग वर्ल्ड स्टार्ट होता है, स्टार्ट करते हैं। हाउ वंडरफुल इज़ द लिविंग वर्ल्ड।
The wide range of living type is amazing. The extraordinary habitats in which we find living organisms, be it called mountains, deciduous forest, ocean, freshwater lakes, desert, or hot spring, leave us speechless. The beauty of a galloping horse, of the migrating bird, the valley of flowers, or the attacking shark evokes awe and a deep sense of wonder. The ecological conflict and cooperation among members of a population and among population of a community, or even the molecular traffic inside the cell, make us deeply reflect on what indeed is life. The question has two implicit questions within it. The first is a technical one and seeks answer to what living is as opposed to the non-living, and the second is a philosophical one and seeks answer to the what the purpose of life is. As scientists, we shall not attempt answering the second question, we will try to reflect on what is living. देखिए यहाँ पे सिंपली जो है हमें बताया गया है कि लिविंग और नॉन लिविंग में क्या फ़र्क होता है। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको देख के हमारे अंदर एक जिज्ञासा आती है कि होती क्या है लाइफ, असल में लिविंग है क्या, राइट। तो यहाँ पे दो क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो पहला है कि व्हाट इज़ लाइफ, एंड जो ये लाइफ है इसके भी दो क्वेश्चन, दो व्यूज़ बनते हैं। एक तो फिलोसफिकल व्यू कि मतलब लाइफ है तो उसका पर्पस क्या है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे जीना चाहिए, और एक दूसरा है साइंटिफिक। साइंटिफिक मतलब असल में लिविंग ऑर्गेनिज्म है क्या, लाइफ में होता क्या है, राइट। तो हम जो है फर्स्ट क्वेश्चन को आंसर करेंगे जो कि साइंटिफिक क्वेश्चन है, लाइक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, टिश्यूज़ क्या होते हैं, सेल क्या होता है, ऑर्गेनिज्म क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ लिविंग? When we try to define living, we conventionally look for distinctive characteristics exhibited by living organism: growth, reproduction, ability to sense environment, and mount a suitable response come to our mind immediately as unique features of living organisms. One can add a few more features like metabolism, ability to self-replicate, self-organize, interact, and emergence to this list. Let us try to understand each of these. अब यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं। मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे ग्रोथ हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, या फिर इन्वायरमेंट को सेंस करने की एबिलिटी, राइट। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। हर एक कैरेक्टरिस्टिक्स को हम पूरा एक्सप्लेन में पढ़ेंगे यहाँ पे। ओके, चलिए। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो, मतलब सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं। इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। इंक्रीज इन मास, मास में इंक्रीज हो रहा है, या फिर इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो है उसको हम ग्रोथ बोल देते हैं। ओके, अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोज बाय सेल डिविजन। इन प्लांट्स this growth by cell division occurs continuously throughout their lifespan. In animals, this growth is seen up to a certain age. जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर ग्रोथ क्या होती है? बाय द हेल्प ऑफ सेल डिवीजन। जो प्लांट्स हैं उनके अंदर ग्रोथ लाइफ टाइम चलती रहती है क्योंकि उनके अंदर सेल डिवीजन होती रहती है। बट जो एनिमल्स होते हैं, जैसे कि कोई छोटा बच्चा पैदा हुआ और वो एक अडल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो जो हाइट बढ़ती है, वेट बढ़ता है, वो एक सर्टेन एज तक ही होता है ना, उसके बाद तो नहीं होता, राइट। तो जो एनिमल्स होते हैं उनमें सेल डिवीजन होता है बट अप टू अ सर्टेन एज. However, cell division occurs in the certain tissues to replace lost cells. कुछ टिश्यूज़ में सेल डिवीजन होता ही रहता है लाइफ टाइम एनिमल्स के अंदर भी, ताकि जो लॉस्ट सेल्स है उनको रिप्लेस करके न्यू सेल्स क्रिएट किए जा सके. हाउएवर सेल डिवीजन अकर इन सर्टेन टिश्यूज़ टू रिप्लेस लॉस्ट सेल्स. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ग्रोज बाय सेल डिवीजन. जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कैसे ग्रो करते हैं? सेल डिवीजन से. वन कैन ईजिली ऑब्जर्व दिस इन विट्रो कल्चर्स बाय सिंपली काउंटिंग द नंबर ऑफ अ सेल्स अंडर द माइक्रोस्कोप. In majority of higher animals and plants,
Growth and reproduction are mutually exclusive events. One must remember that increase in body mass is considered as growth. Non-living object also grow if we take increase in body mass as a certain criteria for growth. देखिए अगर बॉडी के मास में इंक्रीज हो रहा है तो उसको हम ग्रोथ बोल सकते हैं, बट अगर हम इसी क्राइटेरिया को लेके चले कि जिसकी बॉडी में मास का इंक्रीज हो रहा है वही लिविंग है, तो इस केस में तो नॉन लिविंग भी ग्रो करते हैं। जैसे कि कोई पहाड़ है, उस पर मिट्टी जम रही है, तो क्या उसके बॉडी मास में तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन क्या वो लिविंग है? नहीं है लिविंग वो। ओके, mountain boulders and sand mounds do grow. However, this kind of growth exhibited by non living object is by the accumulation of material on the surface. मतलब वो जो ग्रोथ हो रही है वो किस तरह से हो रही है? जैसे वो पहाड़ है, उसके ऊपर कोई मिट्टी आ गई है, बर्फ पड़ गई, तो वो जो है वो आउटसाइड से जो है वो एक्यूमुलेशन हो रहा है कुछ ना कुछ मटेरियल का, तो ये जो ग्रोथ है ये आउटसाइड है। बट लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो ग्रोथ होती है दैट इज फ्रॉम इनसाइड। जैसे कि कोई पेड़ ग्रो कर रहा है, तो वो ऐसा नहीं है कि पेड़ ग्रो कर रहा है तो इसका मतलब उसको बाहर से मिट्टी की वजह से उसके बॉडी मास में इंक्रीज हो गया, नहीं, उसके अंदर सेल डिवीजन हो रहा है जिसके वजह से देयर इज अ ग्रोथ इनसाइड द बॉडी। ओके, in living organism growth is from inside. Growth therefore cannot be taken as the defining property of living organisms. Conditions under which it can be observed in non-living organism have to be explained, and then we understand that it is a characteristic of living systems. A dead organism does not grow. जो dead organisms होते हैं वो growth नहीं करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स पे चलते हैं। रिप्रोडक्शन लाइकवाइज इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन रेफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी possessing features more or less similar to those of the parents. देखिए यहाँ पे रिप्रोडक्शन की हमें ये जो है डेफिनेशन दी गई है कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्शन रेफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी। प्रोजेनी के प्रोडक्शन को हम जो है रिप्रोडक्शन कह सकते हैं। जो प्रोजेनी यानी कि जो चाइल्ड क्रिएट होंगे वो मोर और लेस सिमिलर होंगे अपने पेरेंट्स से। ओके, invariably and implicitly we refer to the sexual reproduction. Organism reproduced by asexual means also. देखिए रिप्रोडक्शन भी दो तरह की होती है, एक होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, तो जो ऑर्गेनिज्म है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से भी ग्रो कर सकते हैं और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से भी ग्रो कर सकते हैं। फंगाई मल्टीप्लाई एंड स्प्रेड इजीली ड्यू टू द मिलियंस ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स दे प्रोड्यूस। फंगाई जो है वो इजीली ग्रो कर पाती है और स्प्रेड हो पाती है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे मिलियंस ऑफ स्पोर्स उसके जो है वो हमें प्रोड्यूस होते हैं। ओके, हवा में रहते हैं। जहाँ भी उसके फंगाई के स्पोर्स को ये लगता है कि हाँ भाई ये मेरे लिए फेवरेबल कंडीशन है, मॉइस्चर है, पानी है, खाना है, वहाँ पे वो ग्रो कर जाते हैं। ओके, इन लोअर ऑर्गेनिजम्स लाइक यीस्ट एंड हाइड्रा वी ऑब्जर्व बडिंग। यीस्ट और हाइड्रा ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर बडिंग होती है, बड लाइक स्ट्रक्चर बनता है, फिर वो डीअटैच हो जाता है पेरेंट बॉडी से, वो एक न्यू ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाता है। इन प्लानेरिया प्लेटफॉर्म्स वी ऑब्जर्व ट्रू रीजनरेशन। प्लानेरिया में क्या होता है? ट्रू रीजनरेशन होता है, जिसका मतलब ये है कि जो फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म है वो रीजनरेट करता है लॉस्ट पार्ट को। मतलब एक प्लेटफॉर्म था वो कट गया बीच से, तो दो अलग अलग इंडिविजुअल ग्रो हो जाएंगे, क्योंकि दोनों जो भी मिसिंग पार्ट है वो ग्रो हो जाएगा। ओके, the fungi, the filamentous algae, the protonema of mosses all easily multiply by fragmentation. When it comes to unicellular organisms like bacteria, unicellular algae or amoeba, reproduction is synonymous with growth, that is increase in the number of cells. We have already defined growth as equivalent to increase in cell number or a mass. Hence we notice that in single celled organism we are not clear about the usage of these two terms growth and reproduction. देखिए जो सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं, सिंगल सेल्ड का मतलब क्या हो गया? एक ही सेल है, उसके अंदर अगर एक से ज़्यादा हो गया तो मतलब उसके बॉडी मास में तो इंक्रीज हो रहा है, प्लस वो रिप्रोड्यूस भी हो रहा है, क्योंकि उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि एक ही सेल होना चाहिए। ओके, तो जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। ओके, further there are many organisms which do not reproduce. Mules, sterile worker bees,
इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स एक्सेट्रा। कुछ ऑर्गेनिजम्स होते जो रिप्रोड्यूस ही नहीं करते, राइट। तो इसका मतलब क्या है ये कि वो लिविंग नहीं है, वो लिविंग है, बट ग्रोथ जो रिप्रोडक्शन है वो एक बेसिक क्राइटेरिया नहीं कि जो रिप्रोडक्शन करेगा वही लिविंग है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, hence reproduction also cannot be on all inclusive defining property of a living organism. Of course, no living object is capable of reproducing or replicating it by itself. हाँ, ये बात ज़रूर है कि जो लोग रिप्रोडक्शन नहीं करते वो लिविंग हो सकते हैं, बट जो नॉन लिविंग होते हैं वो कभी रिप्रोडक्शन कर ही नहीं सकते। फॉर एग्जांपल, एक आपने मशीन बनाई, कोई भी रोबोट बनाया, रोबोट लिविंग है या नॉन लिविंग है? नॉन लिविंग है। क्यों नॉन लिविंग है? क्योंकि वो दूसरा रोबोट अपने आप से क्रिएट नहीं कर सकता, राइट। अपनी बॉडी से एक न्यू रोबोट क्रिएट नहीं कर सकता। अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ इज मेटाबॉलिज्म। अब यहाँ पे जो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास है वो है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म होता क्या है? देखिए फ्रेंड्स, जो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर सबसे पहले तो सेल होगा, सेल के बाद टिश्यू होगा, टिश्यू के बाद ऑर्गन होगा, राइट। अब जो सेल है वो आपस में इंटरेक्ट करेंगे। जब हम खाना खाते हैं तो खाना खा के उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं, एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, तो वो क्या है? एक तरह से केमिकल रिएक्शन। तो जो बॉडी के अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ओके, आई होप कि आपको मेटाबॉलिज्म की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। देखिए, all living organisms are made of chemicals. These chemicals, small and big, belonging to the various classes, sizes, functions, etc., are constantly being made and changed into some other biomolecule. These conversions are chemical reaction or metabolic reaction. There are thousands of metabolic reaction occurring simultaneously inside all living organisms. मतलब हज़ारों सेल्स है, हज़ारों मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, कुछ मतलब नए सेल्स बनते हैं या बिगड़ते हैं, ऐसा होता है। ओके, तो ये जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर मेटाबॉलिज्म होता ही रहता है। देखिए, अब एक रोबोट बनाया आपने, रोबोट के अंदर कोई सेल है? नहीं, उसके अंदर तो मशीन है, मशीन के अंदर कुछ केमिकल रिएक्शन होंगे? नहीं होंगे। ओके, वैसे ही एक बच्चा है, छोटा बच्चा है, ओके, ह्यूमन बेबी है, तो उसके अंदर सेल डिवीजन होता है, केमिकल रिएक्शन होता है। जब उसे खाना दोगे तो वो एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, खेलेगा, नाचेगा, कूदेगा, राइट। और जो अगर उसको खाना नहीं दोगे तो वो रोएगा भी। तो वो क्यों है? वो केमिकल रिएक्शन है, मेटाबॉलिज्म है बॉडी का। मतलब मेटाबॉलिज्म क्या होता है? केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन अ लिविंग बॉडी। Unicellular or multicellular, all plants, fungi and microbe exhibit metabolism. ये जो मेटाबॉलिज्म नाम की ये केमिकल रिएक्शन है ना, इस सभी में होती है, चाहे वो फंगाई हो, चाहे वो माइक्रोब्स, कोई बैक्टीरिया हो, कोई मतलब कुछ भी हो, सबके अंदर मेटाबॉलिज्म होता ही होता है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है मेटाबॉलिज्म तो होना ही होना कंपल्सरी है। The sum total of the all chemical reaction occurring in our body is called metabolism. No non-living object exhibit a metabolism. जो भी non-living होगा उसके अंदर metabolism कभी हो ही नहीं सकता। Okay? Metabolic reaction can be demonstrated outside the body in a cell-free system. An isolated metabolic reaction outside the body of an organism performed in a test tube is neither living or non living. देखिए, कई बार क्या होता है ना, हम जैसे टेस्ट ट्यूब में कोई रिएक्शन किया, कोई मेटाबॉलिक रिएक्शन किया, तो ना ही वो लिविंग है ना ही वो नॉन लिविंग है। ओके, hence while metabolism is a defining feature of all living organism without exception, isolated metabolism reaction in vitro are not living things but surely living reactions. ओके, यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छे से बताया कि आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो हम इन विट्रो में करते हैं, मतलब लैब्स में करते हैं, वो नॉन लिविंग तो है नहीं, बट हाँ वो लिविंग रिएक्शंस है। ओके, hence cellular organization of body is the defining feature of all life forms. इसलिए हम कह सकते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स है सबके अंदर सेल होगा, सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म होगा। इसलिए जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है बॉडी की वो डिफाइनिंग फीचर है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का या लाइफ फॉर्म्स का।
Okay, perhaps the most obvious and technically complicated feature of all living organism is the ability to sense their surrounding or environment and respond to these environmental stimuli, which could be physical, chemical or biological. देखिए यहाँ पे स्टिमुली का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ हो रही है इन्वायरमेंट में, उसके अकॉर्डिंग हम उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। ओके, तो वो क्या है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की पहचान है। आपको कोई मतलब गुस्सा कर रहा है तो आपको बुरा लगेगा, आपसे कोई प्यार से बात कर रहा है तो आपको अच्छा लगेगा, कोई शेर आपकी तरफ आ रहा है तो आप डर जाओगे, आपने किसी गर्म चीज़ को टच कर लिया तो आप अपना हाथ हटाओगे वहाँ से। क्यों? क्योंकि आपके अंदर वो सेंस है, राइट। अब एक देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एक लोहे का ना रोड लो, रोड को ना गर्म पानी के अंदर डाल दो, क्या वो रोड चिल्लाएगा? क्या वो रोड हटेगा वहाँ से? नहीं हटेगा, क्योंकि वो रोड के अंदर सेंस नहीं है इन्वायरमेंट की, राइट। बट अगर आप अपना हाथ उस गर्म पानी के अंदर डालो, किसी गर्म पानी के अंदर डालोगे तो आप अपना हाथ तुरंत हटाओगे। क्यों? क्योंकि आपको गर्म लग रहा है। यू आर हैविंग द एबिलिटी टू सेंस योर इन्वायरमेंट। ओके, तो ये जो एबिलिटी होती है किसी भी इन्वायरमेंट को सेंस करने की, वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक है। ओके, we sense our environment through our sense organs. Plants respond to their external factors like light, water, temperature, other organism, pollutants, etc. अब देखिए, जैसे हम इन्वायरमेंट में मतलब रिस्पॉन्ड करते हैं, वैसे ही प्लांट्स भी जो है वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो वो भी इन्वायरमेंट को रिस्पॉन्ड करते हैं। फॉर एग्जांपल, वो लाइट, वाटर या टेम्परेचर के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करते हैं, या पोल्यूशन कितना है उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करते हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द प्रोकैरियोट्स टू द मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट्स कैन सेंस एंड रिस्पॉन्ड टू environmental cues. Photoperiod affects reproduction in seasonal breeder. Both plants and animals, all organisms handle chemicals entering their bodies. All organisms therefore are aware of their surrounding. Human being is the only organism who is aware of himself. That is the सेल्फ कॉन्शियसनेस। ओके, देखिए कॉन्शियसनेस का मतलब ये होता है कि आपको अनुभूति है कि आपके आसपास में क्या हो रहा है। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो सिंगल सेल्ड हो, मल्टी सेलुलर हो, प्रोकैरियोटिक हो, यूकैरियोटिक हो, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सब के अंदर ये एबिलिटी है कि वो अपने इन्वायरमेंट को पहचान सकता है, इन्वायरमेंटल क्यूज के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड कर सकता है। ओके, when it consciousness therefore becomes the defining property of living organism. Okay, when it comes to human beings, अब हम बात करें इंसानों की, it is all the more difficult to define the living state. We observe patients living in coma in hospitals virtually supported by machine which replace heart and lungs. The patient otherwise is brain dead. The patient has no self-consciousness. Are such patient who never come back to normal life, living or non living. अब यहाँ पे एक क्वेश्चन हमसे पूछ लिया कि अगर हम मान ले कॉन्शियसनेस एक एबिलिटी है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होंगे वो सभी कॉन्शियस होंगे और जो नॉन लिविंग है वो सभी नॉन कॉन्शियस होंगे। अब यहाँ पे हम एग्जांपल ले एक कोमा पेशेंट की, जो कोमा में गया हुआ है, जिसको अपने आसपास को कुछ समझ ही नहीं आ रहा, वो मशीन्स के थ्रू, वेंटिलेटर के थ्रू, जिसके उसका लंग्स काम नहीं कर रहे, उसका हार्ट काम नहीं कर रहा, फिर भी वो लिविंग है। तो क्या उसे हम लिविंग कंसिडर करेंगे या नॉन लिविंग कंसिडर करेंगे, राइट? In higher classes, you will come to know that all living phenomena are due to underlying interactions. Properties of tissues are not present in the constituent cell but arise as a result of interactions among the constituent cell. देखिए, कोई भी प्रॉपर्टी है किसी भी टिश्यू की, जैसे एक जाइलम है, फ्लोएम है, या कोई भी टिश्यू है, उसके पास जो है ना, वो उसकी जो प्रॉपर्टी है किसी पर्टिकुलर टिश्यू की, वो हर एक सेल के पास प्रेजेंट नहीं होती, बट सेल्स के अंदर जो इंटरेक्शन होती है उसी की वजह से उस टिश्यू के अंदर वो प्रॉपर्टीज आ रही है। सिमिलरली, properties of a cellular organelles are not present in the molecular constituents of the organelle but arise as a result of interaction among the molecular components as comprising the organelles. मतलब जो cellular organelles की जो properties है वो molecular constituents के अंदर नहीं होगी, but वो result है किसका? molecular constituents का। Okay, these
interaction result in emergent properties at a higher level of organization. This phenomenon is true in the hierarchy of organizational complexity at all level. Therefore, we can say that living organisms are self-replicating, evolving and self-regulating interactive system capable of responding to the external stimuli. Biology is the story of life on earth. Biology is the story of evolution of living organisms on earth. All living organisms, present, past and future, are linked to one another by the sharing of the common generic material, but to a varying degree. Okay. 1.2, diversity in the living world. If you look around, you will see a large variety of living organisms, be it potted plants, insect, bird, your pets or other animals and plants. There are also several organisms that you cannot see with your naked eye, but they are also around you. If you were to increase the area that you make observation in, the range and variety of organism that you see would increase. Obviously, if you are trying to if you were to visit a dense forest, you will probably see a much greater number of kinds of living organisms in it. Each different kind of a plant, animal or organism that you see represent a species. The number of a species that are known and described range between 1.7 to 1.8 million. This refers to biodiversity, or the number of types of organisms present on earth. We should remember here that as we explore new areas and even old ones, new organisms are continuously being identified. As stated earlier, there are millions of plants and animals in the world. As we know the plants and animals in our own area by their local name, these local names would vary from place to place. Even within our country, probably you would recognize the confusion that what would be created if we did not find ways and means to talk to each other to refer the organisms we are talking about. Hence, there is a need to standardize the naming of a living organism such that a particular organism is known by the same name all over the world. This process is called nomenclature. Obviously, nomenclature or naming is only possible when the organism is described correctly and we know to what organism the name is attached to. This is identification. In order to facilitate the study, number of scientists have established procedures to assign a scientific name to each known organism. This is acceptable to all biologists all over the world. For plants, scientific names are based on agreed principle and criteria which we provided in International Code for Botanical Nomenclature (ICBN). You may ask, how are animals named? Animal taxonomists have evolved International Code of Zoological Nomenclature, that is, the scientific name ensures that each organism has only one name of any organism should be enabled to the people in a part of the world to arrive at the same name. They also ensure that such name has not been used for any other non-organism. Biologists follow universally accepted principles to provide scientific names to organisms. Each name has two components. The name first is the generic name and the second is the specific epithet. The system providing a name with two components is called binomial nomenclature. This naming system is given by Carolus Linnaeus, is being practiced by biologists all over the world. The naming system using a two-word format also found convenient. Let us take the example of a mango to understand the way of providing scientific names better. The scientific name of mango is written as Mangifera indica. Let us see how it is a binomial name. In this name, Mangifera represents the genus, while the indica it is a particular species. For specific epithet, other universal rules of nomenclature are as follows. First rule is the biological names are generally in Latin and written in italics. They are Latinized or derived from a Latin irrespective of their origin. Second, the word in a biological name represents the genus, while the second name component denotes the specific epithet.
Third, both the words in a biological name, when handwritten, are separately underlined or printed in italics to indicate their Latin origin. The first word denoting the genus start with a capital letter, while the specific epithet start with a small letter. It can be illustrated with the example of Mangifera indica. Okay, name of the author appears after the specific epithet that is at the end of the biological name and is written in abbreviated form. Example, Mangifera indica Linn. It indicates that the species was first described by Linnaeus. Since it is nearly impossible to study all the living organisms, it is necessary to devise some means to make this possible. This process is called classification. Classification is the process by which anything is grouped into convenient categories based on some easily observable characters. For example, we shall easily recognize groups such as plants or animals or dogs, cats or insects. The moment we use any of these terms, we associate certain characters with the organism in that group. What image do you see when you think of a dog? Obviously, each one of us will see dogs and not cats. If we think of Alastrians, we know that what we are talking about. Similarly, suppose were to say mammals, you would of course think of animals with external ear and body hairs. Likewise, in plants, if we try to talk of wheat, the picture in each of our mind will be of wheat plant, not of the rice or any other plant, right? Hence, all these dogs, cats, mammal, wheat, rice, plant, animals, etc. are convenient categories we use to study organisms. The scientific term for these categories is called taxa. Here you must recognize that taxa can indicate categories at a very different level. Plants also form a taxa. Wheat is also a taxa. Similarly, animals, mammals, dogs are all taxa. But you know that a dog is a mammal and mammal are animals. Therefore, animal, mammals and dogs represent taxa at a different level. Hence, based on characteristics, all living organism can be classified into different taxa. The process of classification is called taxonomy. External and internal features, internal structure along with the structure of a cell, development process and ecological information of organism are essential and form the basis of modern taxonomist study. Hence, characterization, identification, classification and nomenclature are the process that are basic to taxonomy. देखिए फ्रेंड्स, ऊपर के जो मैंने 4-5 पैराग्राफ पढ़े, इसमें सिंपली जो है हमने नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ा है, क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा है और उसके बाद हमने टैक्सोनॉमी के बारे में पढ़ा है. ओके, देखिए हमें ना, अगर हमें ये पता लगाना हो कि पूरे वर्ल्ड में कितने लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो उसकी रेंज 1.7 से 1.8 मिलियन तक पहुंच जाती है. अब देखिए, कहीं पे जो है डॉग को कुत्ता बोलते हैं, ओके, कहीं पे डॉग को कुकुर बोलते हैं, राइट. मलयालम में अलग बोलते हैं डॉग को, संस्कृत में अलग नाम से डॉग को जाना जाता है. तो मतलब एक ही एनिमल के कितने सारे नेम हो सकते हैं. ओके, तो मतलब अब मान लीजिए किसी ने डॉग को एक नाम दे दिया, ओके, फिर दूसरे ने कुछ और नाम दे दिया, तीसरे ने कुछ और नाम दे दिया. अब तीनों उसकी स्टडी करने के लिए बैठे तो उनके अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाएंगे, राइट. तो इसीलिए साइंटिस्ट ने क्या किया है कि हर एक ऑर्गेनिज्म जो भी होगा उसका नोमेनक्लेचर करेंगे. नोमेनक्लेचर क्यों करेंगे? चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, दोनों का नोमेनक्लेचर होगा. नोमेनक्लेचर में एज पर द साइंटिफिक रूल्स हम उसका नाम रखेंगे और वो जो नाम है वो सभी साइंटिस्ट एक्सेप्ट करेंगे, सभी कंट्रीज एक्सेप्ट करेगी. उसके लिए ना 2 कोड्स बनाए गए. फर्स्ट है बोटेनिकल नोमेनक्लेचर के लिए ICBN और दूसरा है एनिमल के लिए जो हम नोमेनक्लेचर करते हैं वो जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर के अंदर आ जाता है, इसलिए उसको बोलते हैं ICZN. ओके, ये दोनों नोमेनक्लेचर है. प्लांट के लिए ICBN है, बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, और एनिमल्स के लिए जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर ICZN है. ओके, अब जो नाम हम बायोलॉजिकली रखते हैं उसमें 2 कंपोनेंट होते हैं. जैसे कि आपका नाम है, मान लीजिए अंकुर राठी किसी का नाम है, तो अंकुर उसका नाम हो गया जो उसके घर वालों ने उसको प्यार से बोलने के लिए रखा है.
और राठी उसका सरनेम हो गया, जो उसके पिताजी का, दादाजी का या किसी का भी सरनेम होगा उसके सीनियर्स का, राइट। इसी तरह से जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं एनिमल्स की, तो फर्स्ट होता है जेनेरिक नेम, जो उसकी जीनस है उसके अकॉर्डिंग, और सेकंड होता है स्पेसिफिक एपिथेट। ओके, अब स्पेसिफिक एपिथेट के बाद जो है हम साइंटिस्ट का भी नेम ले सकते हैं जिसने उसकी नेमिंग की है। ओके, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे जो नेम एग्जाम्पल दिया गया है वो मैंगो का दिया गया है। मैंगो का साइंटिफिक नाम है मैंगीफेरा इंडिका। अब इसको जो है लिनियस ने किया है, मतलब मैंगीफेरा में जो मतलब मैंगीफेरा का मतलब हो गया जीनस, और इंडिका का क्या हो गया, स्पीसीज। इंडिका का मतलब क्या हो गया, स्पीसीज। ओके, और जो मतलब उसके बाद अगर हमें उसके ऑथर का मतलब जिसने वो नाम लिया है, लिखा है, बायोलॉजिकल नाम रिप्रेजेंट किया है, तो उसके लिए हम उसका नाम तो लिखेंगे साइंटिस्ट का, बट वो एब्रीवेटिव फॉर्म में होगा। जैसे मैंगीफेरा इंडिका है जो कि लिनियस ने डिस्कवर किया था, लिनियस उसके ऑथर है, तो मैंगीफेरा इंडिका LINNN। ओके, क्योंकि हम वो पूरा नाम नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन के बारे में बताया गया। अब इन सभी को ना मैं बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो मतलब एग्जाम्स में पूछी जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद टेक्सा के बारे में बताया गया, टेक्सोनोमी के बारे में बताया गया। ओके, चलिए अब हम जो है यहाँ से स्टार्ट करते हैं। Process and ecological information of organism are essential and form the basic modern taxonomic studies. Hence, characterization, identification, classification, and nomenclature are the processes that are basic to taxonomy. Taxonomy is not a something new. Human beings have always been interested in knowing more and more about the various kind of organisms, particularly with reference to their own use. In early days, human beings needed to find sources for their basic need of food, clothing, and shelter. Hence, the earliest classification were based on the uses of various organisms. देखिए, ह्यूमन बींग्स को ना शुरू से ही ऑर्गेनिजम्स के बारे में जानने की जिज्ञासा होती ही रही। क्यों? क्योंकि वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करके अपना खाना बनाते थे, या अपने क्लोथिंग के लिए यूज़ किया जाता था, या शेल्टर के लिए यूज़ किया जाता था ऑर्गेनिज्म का। तो हर कोई जो है इंटरेस्टेड है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में जानने के लिए। Human beings were since long not only interested in knowing more about different kind of organism and their diversities, but also the relationship among them. The branch of studies were referred to as systematics. मतलब सिस्टमेटिक्स क्या है, एक ब्रांच ऑफ स्टडी है जो कि मतलब सिस्टमा से डिराइव्ड हुई है। मतलब किस तरह से ऑर्गेनिज्म अरेंजमेंट होती है, कि पहले कौन आया, फिर उसके बाद उसका प्रीवियस से क्या रिलेशन था, क्या उसके बाद उसका अगले वाले से रिलेशन था। तो ये है एक ब्रांच ऑफ साइंस जो स्टडी है सिस्टमेटिक्स। इसकी डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं। द वर्ड सिस्टमेटिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सिस्टमा, which means systematic arrangement of organisms. organisms को हम एक system के according arrange करेंगे। Linnaeus used systema naturae as the title of his publication. The scope of systematic was later enlarged to include identification, nomenclature, and classification. Systematics takes into account evolutionary relationship among between organisms. Okay? चलिए अब बात करते हैं टेक्सोनोमिक कैटेगरीज के बारे में। क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस बट इन्वॉल्व्स हायरार्की ऑफ स्टेप्स इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट अ रैंक और कैटेगरी। देखिए, जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं उसको हम सिंपली ये नहीं बोल सकते कि भाई ये क्लासिफिकेशन हो गई, एक ही स्टेप में सब क्लासिफिकेशन, नहीं। उसके लिए हमें ना एक हायरार्की फॉलो करनी होती है। हायरार्की का मतलब क्या होता है कि एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। जैसे कि अगर हम आपकी फैमिली हायरार्की के बारे में बात करें, तो सबसे पहले अगर आप हायरार्की की बात करें तो सबसे पहले परदादा आते हैं, फिर दादा, फिर पापा, फिर आप, राइट। तो ये क्या होगी, एक हायरार्की होगी, जनरेशन वाइज हायरार्की। जैसे कि आप स्कूल में भी जाते हो तो सबसे पहले टीचर होती है, फिर उसके बाद हेड होता है उन सब का, फिर उसके बाद प्रिंसिपल होते हैं। तो क्या एक हायरार्की है, लेवल है,
राइट। आप किसी ऑफिस में काम करते हैं तो ऑफिस में भी सबसे पहले जो है एम्प्लॉयज़ होते हैं, एम्प्लॉयज़ के ऊपर कोई टीम लीडर होता है, टीम लीडर के ऊपर मैनेजर होता है, मैनेजर के ऊपर जो है सीनियर मैनेजर, फिर वाइस मैनेजर, मतलब ऐसे ऐसे करके एक हायरार्की सीईओ तक होती है। ओके, ऐसे ही जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है हायरार्की जिसको हम यूज़ करते हैं। सिंस द कैटेगरी इज अ पार्ट ऑफ ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट, इट इज कॉल्ड टैक्सोनॉमिक कैटेगरी एंड ऑल कैटेगरी टुगेदर कंस्टिट्यूट्स अ टैक्सोनॉमिक हायरार्की। देखिए हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं टैक्सा की बात कर रहे हैं, टैक्सा मतलब एक कैटेगरी के बारे में, तो जो हम हायरार्की पढ़ेंगे वो टैक्सोनॉमिक हायरार्की पढ़ेंगे। ओके, ईच कैटेगरी रेफर टू एज अ यूनिट ऑफ अ क्लासिफिकेशन, इन फैक्ट रिप्रेजेंट अ रैंक एंड इज कॉमनली टर्म्ड एज टैक्सोन। देखिए हर एक टैक्सोनॉमिक हायरार्की जो है एक रैंक को डिफाइन करती है, उस इसी वजह से हम उसको टैक्सोन बोलते हैं, प्लूरल फॉर्म इज टैक्सा। ओके, taxonomic categories and hierarchy can be illustrated by an example. Insects represent a group of organisms sharing common features like 3 pairs of jointed legs. It means insects are recognizable concrete objects which can be classified and thus were given a rank or a category. Can you name other groups of organisms? Remember, groups represent category. Category further denotes rank. Each rank or taxon in fact represent a unit of a classification. These taxonomic groups or categories are distinct biological entities and not merely morphological aggregates. देखिए अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताऊं जो कि यहाँ पे दिया गया है हमें, कि जिनके भी ना जॉइंटेड लेग्स होते हैं और 3 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग्स होते हैं उनको हम एक कॉमन ग्रुप में डाल देते हैं, इंसेक्ट्स में डाल देते हैं। ओके, तो इंसेक्ट्स का सबसे मतलब वो टैक्सा क्या है, आर्थ्रोपोडा, राइट। तो मतलब एक कैटेगरी बन गई हमारे इंसेक्ट की, यानी कि एक रैंक बन गई, राइट। अगर उस कैटेगरी से अलग कोई ऑर्गेनिज्म होगा तो वो डिफरेंट टैक्सा में जाएगा। तो टैक्सोनॉमिक स्टडीज ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म हैव लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ कॉमन कैटेगरीज सच एज किंगडम, फाइलम और डिवीजन इंक्लूडिंग दोज इन द प्लांट एंड एनिमल किंगडम। मतलब जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज है ना तो उसके अकॉर्डिंग हमने ना मतलब डिफरेंट वो बना दिए, लेवल्स बना दिए, जैसे किंगडम हो गया, फिर फाइलम हो गया, फिर क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज, ये 7 जो है हमारे लेवल है। ओके, ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग दोज इन द प्लांट एंड एनिमल किंगडम हैव स्पीसीज एज द लोवेस्ट कैटेगरी। स्पीशीज जो है वो सबसे लोवेस्ट कैटेगरी है। ओके, नाउ द क्वेश्चन यू मे आस्क इज हाउ टू प्लेस अ ऑर्गेनिज्म इन वेरियस कैटेगरीज, मतलब हम किसी ऑर्गेनिज्म को किस कैटेगरी में डालें, कैसे हमें पता चलेगा। The basic requirement is the knowledge of characteristic of an individual or a group of organism. This help in identifying similarities and dissimilarities among the individuals of the same kind of organism. अब यहाँ पे हमें स्पीसीज़ के बारे में दिया गया है, स्पीसीज़ के बाद जीनस, फिर फैमिली, फिर ऑर्डर, फिर क्लास, देन किंगडम। ओके, फाइलम एंड किंगडम। देखिए यहाँ पे जो है स्पीसीज सबसे लोवेस्ट लेवल पे है, फिर जीनस है, फिर फैमिली है, फिर ऑर्डर है, फिर क्लास है, डिवीजन, फाइलम और डिवीजन और किंगडम है। आप इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी याद कर सकते हो, डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी याद कर सकते हो। देखिए पहले आता है किंगडम, ठीक है, फिर आता है फाइलम, फिर क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। स्पीसीज सबसे लास्ट में आती है। ओके, पहले स्पीसीज के बारे में पढ़ लेते हैं। Species. Taxonomic studies consider a group of individual organisms with fundamental similarities as species. One should be able to distinguish one species from the other closely related species based on the distinct morphological differences. Let us consider Mangifera indica, Solanum tubersum potato, and Panthera leo lion. All 3 names indica, tubersum, and leo represent the specific epithet, while the first word Mangifera, Solanum, and Panthera are genera and represent another higher level of taxon or category. Each genus may have one or more than one specific epithets representing different organisms but having morphological similarities. For example, Panthera has another specific epithet called tigris, and Solanum includes species like Nigrum and Melongina. Human beings belong to the species Sapiens, which is being grouped in the genus Homo. The scientific name thus for a human being is written as Homo sapiens. देखिए
स्पीसीज क्या होता है? स्पीसीज सबसे एक स्मॉलर ग्रुप है, सबसे बेसिक लेवल है। ओके, देखिए मैं आपको ना एक एग्जांपल बताती हूँ। जैसे कि आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हो, ओके, आप एम्प्लॉय हो वहाँ पे। एम्प्लॉय के बाद वहाँ पे आएगा टीम लीडर, टीम लीडर के बाद आएगा मैनेजर, मैनेजर के बाद आएगा सीनियर मैनेजर, ठीक है। तो अगर आप एम्प्लॉय हो और आपके जैसे वहाँ पे 500 एम्प्लॉय काम कर रहे हो और हर एक टीम लीडर को जो है 50 बंदे दे रखे हैं, ओके, तो कितनी टीम हो गई? 10 टीम हो गई, राइट। तो आप जिस टीम में हो उसके टीम लीडर है अभिषेक, ओके, और अदर टीम्स है, एक और टीम है जिसके टीम लीडर है मान लीजिए उसकी टीम लीडर है गीता, ओके। तो यहाँ पे 2 टीम लीडर हो गए। अभिषेक की टीम में आप हो, आपका नाम है अंकुर, तो अभिषेक अंकुर, ठीक है, सॉरी अंकुर अभिषेक हमने नाम दे दिया। और दूसरी टीम में एक और अंकुर है, उसका नाम हो गया अंकुर गीता, ठीक है। तो आपने यहाँ पे देखा कि जो नाम है वो स्पीशीज जो मतलब नाम है वो डिफरेंशिएट कर रहा है। मतलब हो तो आप टीम में ही सबसे बेसिक लेवल पे हो, बट आपको ये पता है आपकी किसके टीम में हो, आपके टीम लीडर के अकॉर्डिंग आपकी आइडेंटिटी है। ऐसे ही यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल जैसे कि टिग्रिस का एग्जांपल दिया हुआ है, मतलब पैंथेरा, पैंथेरा लियो और पैंथेरा टिग्रिस। पैंथेरा जो है वो सेम क्लास है, बट लायन और टाइगर में बहुत डिफरेंस है, राइट। तो स्पीसीज जो है वो बेसिक लेवल है कि मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स अलग हो सकते हैं, इसलिए वो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। अब बात करते हैं जीनस की। जीनस कंप्राइजेज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, मतलब एक तरह की जो स्पीसीज है उनको अगर हम ग्रुप कर दें तो वो बन जाता है हमारा जीनस, which has more characters in common in comparison to species of other genera. We can say that genera are aggregates of closely related species. For example, potato and brinjal are 2 different species but both belong to the genus Solanum. अब देखिए मैंने पहले भी एक एग्जांपल बताया था। सोलैनम एक जो है हमारी जीनस है, ठीक है, सोलैनम जीनस है, मतलब सोलैनम एक टीम है, टीम लीडर नाम है सोलैनम का। अब उस सोलैनम की टीम में एक पोटैटो आता है और एक ब्रिंजल आता है। पोटैटो और ब्रिंजल दोनों ही अलग डिफरेंट है, बट सोलैनम क्या है? एक जीनस है, वो क्या है? एक टीम लीडर है, ओके। lion, Panthera leo, leopard, pardus and tiger with several common feature are all species with genera Panthera. Panthera एक जीनस है जिसमें कि लायन, लियोपार्ड और टाइगर ये तीनों एनिमल्स आते हैं और तीनों अलग अलग स्पीसीज है, बट इनकी जीनस सेम है। दस जीनस डिफर फ्रॉम अनदर जीनस फैलिस विच इंक्लूड्स कैट्स। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया गया है, आर ऑल स्पीसीज ऑफ द जीनस पैंथेरा, दिस जीनस डिफरेंट फ्रॉम अनदर जीनस फैलिस विच इंक्लूड्स कैट्स। नेक्स्ट हमारे पास आता है फैमिली। द नेक्स्ट कैटेगरी फैमिली हैज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा विच स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटी कंपेयर टू जीनस एंड स्पीसीज। मतलब फैमिली के अंदर हमारे पास अलग अलग जेनेरा आ जाते हैं, मतलब अलग अलग जीनस आ जाती है, जो स्पीसीज अलग है, जिनकी जीनस भी अलग है, बट वो सेम कैटेगरी में फॉल करती है। Families are categorized on the basis of both vegetative and reproductive features of plant species. Among plants, for example, 3 different genera, Solanum, Tunia and Datura are placed in the family Solanaceae. अब देखिए यहाँ पे 3 different genera है, फर्स्ट Solanum, ट्यूनिया एंड दतूरा। उन तीनों को हमने एक फैमिली में रखा है सोलेनेसी में, ओके। अमंग एनिमल्स, फॉर एग्जांपल जीनस पैंथेरा कंप्राइजिंग लायन, टाइगर, लियोपार्ड इज पुट अलोंग विद जीनस फेलिस कैट्स इन द फैमिली फेलिडेई। मतलब अब यहाँ पे एक फैमिली है फेलिडेई, फेलिडेई के अंदर कौन कौन आता है? कैट्स भी आती है और पैंथेरा भी आता है। फेलिस और पैंथेरा दोनों ही जीनस यहाँ पे आती है फैमिली फेलिडेई में, ओके। Similarly, if you observe the features of a cat and a dog, you will find some similarities and some differences as well. They are separated into 2 different families, Felidae and Canidae. अब Felidae और Canidae जो है वो different families है। Felidae किसके लिए है? Cats के लिए, और Canidae किसके लिए है? Dogs के लिए, ओके। चलिए अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं ऑर्डर पे। ऑर्डर
You have seen earlier that the categories like species, genus, and families are based on a number of similar characters. Generally, order and the higher taxonomic categories are identified based on the aggregate of characters. Order being a higher category or is the assemblage of families which exhibit a few similar characters. The similar characters are less in number as compared to different genera, including in a family. Plant family like Convolvulaceae, Solanaceae are included in order Polymonales, mainly based on the floral characters. The animal order Carnivora include family like Felidae and Canidae. Okay. अब नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ जो आ जाता है वो है क्लास. दिस कैटेगरी इंक्लूड्स रिलेटेड ऑर्डर्स, मतलब सेम ऑर्डर के जितने भी ग्रुप सेट कैटेगरीज है उनको हम ऑर्डर में क्लास में इंक्लूड करते हैं. फॉर एग्जांपल, Primata comprising monkey, gorilla and gibbon are placed in the class Mammalia along with order Carnivora that includes animal like tiger, cat and dog. Class Mammalia has other orders also. Phylum. Phylum comprises animals like classes are comprising animals like fishes, amphibians, reptiles, birds along with mammals constitute the next higher category called phylum. All this based on the common features like presence of notochord or a dorsal holoneural notochord system are included in the phylum Chordata. In case of a plant, classes with a few similar characters are assigned to the higher category called division. Okay. Kingdom. All animals belonging to various phyla are assigned into the highest category called kingdom Animalia in the classification system of animals. The kingdom Plantae on the other hand is distinct and comprises of all plants from various divisions. Henceforth we will refer to these two groups as animal and प्लांट किंगडम. किंगडम में दो ही हमने डिवीजन की हुई है, एनिमल किंगडम एंड प्लांट किंगडम्स. ओके, चलिए. The taxonomic categories from a species to kingdom have been shown in the ascending order. यहाँ पे species to kingdom में ये ascending order में शो किया गया है. ये कई बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, तो आप इसको ज़्यादा ध्यान से रीड करके जाइएगा. ओके. However, the taxonomists have these are broad categories. However, the taxonomists have also developed subcategories in the hierarchy to facilitate more sound and scientific placement of various taxa. Look at the hierarchy at figure 1.1. Can you recall the basis of arrangement? Say for example, we go from higher species to kingdom, the number of characteristics goes on decreasing lower the taxa. More the characters are that the members within the taxa share, higher the category, greater is the difficulty to determining the relationship to the other taxa at the same level. Hence the problem of classification has become more complex. अब यहाँ पे टेबल पॉइंट 1.1 है, जो कि टेबल 1.1 इंडिकेट्स द टेक्सोनोमिक कैटेगरीज टू सम कॉमन ऑर्गेनिजम्स लाइक हाउस फ्लाई, मैंगो एंड वीट बिलोंग. यहाँ पे कुछ टेक्सोनोमिक कैटेगरी बताई गई है, जैसे कि मैन के लिए, मैन का कॉमन नेम है मैन. ओके, कॉमन नेम मैन. बायोलॉजिकल नेम क्या है? होमो सैपियंस. जीनस कौन सी है? होमो. फैमिली होमिनिडाई. ऑर्डर प्राइमेटा. क्लास मैमेलिया एंड डिवीजन और फाइलम इज कोर्डेटा. ठीक है. अब नेक्स्ट हमारे पास आता है हाउस फ्लाई. हाउस फ्लाई जो हमारा कॉमन नेम है. हाउस फ्लाई की बायोलॉजिकल नेम क्या है? मस्का डोमेस्टिका. ओके. जीनस क्या है? मस्का. एंड फैमिली क्या है? मस्किडेई. एंड ऑर्डर इज डिप्टेरा एंड क्लास इज इंसेक्टा एंड फाइलम और डिवीजन इज आर्थ्रोपोडा. मैंगो. मैंगो का बायोलॉजिकल नेम क्या है? मैंगीफेरा इंडिका. मैंगीफेरा इंडिका की जीनस है मैंगीफेरा. फैमिली है एनार्किडेसेई एंड ऑर्डर है सेपिनोडाल्स एंड क्लास डाइकोटिलेडन. और ये डिवीजन में कौन सी में आते हैं? फाइलम कौन सा है? एंजियोस्पर्म. ओके. अब नेक्स्ट हमारे पास है वीट. वीट का साइंटिफिक नेम जो है वो है ट्राइटिकम एस्टिवियम. और जीनस क्या है? ट्राइटिकम. और फैमिली पोसेई और ऑर्डर पोएलिस एंड क्लास मोनोकोटिलेडन और फाइलम और डिवीजन एंजियोस्पर्म. ओके. तो ये सारी चीज़ें, ये जो टेबल है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के लिए, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ ली जाते हैं. ओके.
चलिए अब बात करते हैं 1.4 टैक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में। टैक्सोनॉमिकल एड्स, टैक्सोनॉमिक स्टडीज ऑफ वेरियस एनिमल्स ऑफ प्लांट्स, वेरियस स्पीसीज ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म आर यूजफुल इन एग्रीकल्चर, forestry, industry, and in general knowing our bioresources and their diversity. This study would require correct classification and identification of organism. Identification of organisms require intensive laboratory and field studies. The collection of actual specimen of a plant and animal species is essential and is the prime source of taxonomic studies. These are also fundamental to studies and essential for training in systematics. It is used for classification of an organism, and the information gathered is also stored along with the specimens. In some cases, the specimen is preserved for future studies. Biologists have established certain procedures and techniques to store and preserve the information as well as other specimens. Some of these are explained to help you understand the usage of these aids. देखिए एड्स टू टेक्सोनोमी, देखिए टेक्सोनोमी का मतलब क्या होता है कि हम हर एक ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में अकॉर्डिंग टू देयर टैक्सा डिवाइड करेंगे, राइट। अब डिवाइड करने के लिए पहले उनका स्पेसिमेन भी तो होना चाहिए। अब मैंने एक नाम रख दिया मैंगीफेरा इंडिका, मैंगो का, ठीक है। अब किसी ने मैंगो देखा ही नहीं है और उसको किसी ने ना तरबूज दिखा के बोला कि ये मैंगीफेरा इंडिका है, तो क्या वो मान ले वो तरबूज जो है वो मैंगो है? नहीं, ऐसे नहीं मान सकते ना हम। तो हर एक चीज़ का एक स्पेसिमेन रखा जाता है साइंटिफिकली, ताकि वो शो किया जा सके कि हमने पर्टिकुलर चीज़ का क्या नाम रखा है और वो क्यों रखा है या किस स्पीशीज से है, किस जीनस से है। ओके, तो ये जो है ये टेक्सोनोमिक एड की तरह काम करता है। अब जो टेक्सोनोमिक एड है यहाँ पे डिफरेंट टाइप की टेक्सोनोमिक एड्स के बारे में बताया गया है, जैसे कि हर्बेरियम एक टेक्सोनोमिक एड है, फिर उसके बाद जो है बोटेनिकल गार्डन्स है, म्यूजियम्स है ये, और जूलॉजिकल पार्क्स है, की है, और ये सभी जो है एक टेक्सोनोमिक एड्स है। और टेक्सोनोमिक एड्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हर्बेरियम के साथ। Herbarium is a storehouse of collected plant specimens that are dried, pressed and preserved on sheets. Further, these sheets are arranged according to the universally accepted system of classification. These specimens, along with the description on herbarium sheet, becomes a storehouse or repository for future future use. The herbarium sheets also carry a label providing information about date and the place of collection, English, local and botanical names, family, collector's name, etc. Herbaria also serve as a quick referral system in taxonomical studies. देखिए हर्बेरियम क्या होता है कि जितने, जैसे कि आपको कभी स्कूल जैसे आपको स्कूल में भी कभी एक एक्सपेरिमेंट मिला हुआ कि जितने भी आप नीम की पत्तियाँ तोड़ के लाओ उसके बारे में लिखो, ये हमें सेकंड थर्ड क्लास में मिलते थे, राइट, इस तरह के प्रोजेक्ट। तो हर्बेरियम में क्या होता है ना कि जितने भी प्लांट के स्पेसिमेंस है उनको ड्राई करके एक शीट पे चिपकाया जाता है, जैसे यहाँ पे दिखाया भी गया है। ये शीट्स है, उनके बारे में फिर कब वो शीट कलेक्ट की गई है, उस प्लांट का साइंटिफिक नेम क्या है और उसके क्या फैमिली है, क्या जीनस है, क्या स्पीसीज है, उसके बारे में सारी जानकारी उस शीट पे होती है। तो इससे क्या होता है, एक स्टोर हाउस की तरह ये काम करता है। ओके, चलिए अब बात करते हैं बोटेनिकल गार्डन्स के बारे में। बोटेनिकल गार्डन, दिस स्पेशलाइज्ड गार्डन हैव कलेक्शंस ऑफ लिविंग प्लांट फॉर रेफरेंस। The plant species in these gardens are grown for identification purpose and each plant is labeled indicating its botanical or scientific name and its family. The famous botanical gardens in India are at Kew, England, Indian Botanical Garden, Howrah, India, and at National Botanical Research Institute, Lucknow, India. देखिए ये बोटेनिकल गार्डन क्या होते हैं कि यहाँ पे पर्टिकुलर स्पीसीज़ के बारे में जानकारी लेने के लिए उसको लाइव शो करने के लिए हम उन प्लांट्स को ग्रो करते हैं और उनको फैमिली या जीनस के अकॉर्डिंग डिफाइन करते हैं। जैसे आप किसी पार्क में भी गए हो, लिखा हो फैमिली ये है और जीनस ये है, तो वो जो होते हैं बोटेनिकल गार्डन्स होते हैं, फिर ये प्रिजर्व रखते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। ओके, चलिए अब बात करते हैं म्यूज़ियम की। म्यूज़ियम आई थिंक सभी गए होंगे बचपन में।
Biological museums are generally set up in educational institutes such as schools and colleges. Museums have collections of preserved plant and animal species for study and reference. Specimens are preserved in the containers or a jar in preservative solution. Plant and animal specimen may be also preserved or dry specimen. Insects are preserved in insect boxes for collecting, killing and pinning. Larger animals like birds and mammals are usually stuffed and preserved. Museum often have collection of skeleton of animals too. मतलब म्यूज़ियम में क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा कि म्यूज़ियम में कुछ जार में कुछ लिक्विड होता है, लिक्विड के अंदर वो जो है स्पेसिमेंस रखे जाते हैं ताकि उनको प्रिजर्व रखा जा सके और उनके बारे में जानकारी ले सके। ओके, अब बात करते हैं जूलॉजिकल पार्क्स के बारे में। जूलॉजिकल पार्क मतलब देखिए आपने बायोलॉजिकल पार्क्स पढ़े थे, राइट, बोटेनिकल गार्डन्स। ओके, तो अब बात करते हैं जूलॉजिकल पार्क। जूलॉजिकल पार्क मतलब एनिमल्स के पार्क, आप गए भी होंगे नॉर्मली जू में। These are the places where wild animals are kept in protected environment under human care, which enable us to learn about their food habits and behavior. All animals in a zoo are provided as far as possible the conditions similar to natural habitats. Children love visiting these common parks are called these parks commonly called as zoo. Zoo में क्या होता है कि जितने भी वाइल्ड एनिमल्स है या ऑर्गेनिजम्स एनिमल्स है उनको जैसे वो रहते हैं ना नेचुरली, उनको वैसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाता है ताकि वो रह सके वहाँ पे। वो रहते हैं और उनको ऑब्जर्व करते हैं ऑर्गेनिज्म कि उनके हैबिट क्या है, बिहेवियर क्या है, उनके पैटर्न क्या है। ओके, चलिए अब बात करते हैं की। Key is another taxonomical aid and is used for identification of plants and animals based on their similarities and dissimilarities. The key are based on the contrasting characters generally in a pair called couplet. It represents the choice made between the two opposite options. This results in acceptance of only one and rejection of the other. Each statement in the key is called a lead. Separate taxonomic key are required for taxonomic categories such as family, genus and species for identification purpose. Key are generally analytical in nature. Flora, manuals, monographs and catalogs are some other means of recording descriptions. They also help in correct identification. Flora contains the actual account of habitat and distribution of plants of a given area, and this provides the index of the plant species found in a particular area. Manual are used in providing information for identification of names of species found in an area. Monographs contain information on any one taxon. ठीक है, देखिए यहाँ पे हमारे पास जो है फ्लोरा, मैनुअल और मोनोग्राफ के बारे में बताया गया प्लस की के बारे में। की का क्या होता है कॉन्सेप्ट? की क्या है? एक एनालिटिकल डिवाइस है। जैसे कि मान लो आपको दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में डिफरेंशिएट करना है, तो पहले तो आप ये देखोगे कि क्या उसकी बॉडी पे हेयर है या नहीं है। ओके, क्या उसके पास मेमोरी ग्लैंड्स है या नहीं है, या तो होंगे या नहीं होंगे, ये दो चीज़ें मान के चलेंगे। अगर होंगे तो वो मैमल्स में चला जाएगा, नहीं होंगे तो दो डिफरेंट कैटेगरी में चला जाएगा, राइट। इस तरह से हम की का यूज़ करते हैं। और फ्लोरा क्या होता है कि गिवन एरिया में कितने प्लांट एनिमल्स, कितने नेचुरली जो प्लांट है या हैबिटेट में पाए जाते हैं, एक्चुअल अमाउंट ऑफ मतलब प्लांट्स या एनिमल्स कितने गिवन एरिया में वो बताया जाता है। मैनुअल्स भी इसी तरह के होता है और मोनोग्राफ भी। ओके, summary. The living world is rich in variety. Millions of plants and animals have been identified and described, but a large number still remains unknown. The very range of organism in terms of size, color, habitat, physiological and morphological features make us seek the defining characteristic of living organism. In order to facilitate the study of kinds and diversity of organism, biologists have evolved certain rules and principles for identification, nomenclature and classification of organism. The branch of our knowledge dealing with the aspects is referred to as taxonomy. The taxonomic studies of various species of plants and animals are useful in agricultural, forestry, industry and in general for knowing our bioresources and their diversity. The basics of taxonomy like identification, naming and classification of organism are universally evolved under international codes. Based on the resemblances and distinct differences, each organism is identified and assigned a correct scientific
scientific or biological name comprising two words as per the binomial system of nomenclature. An organism represents or occupies a place or position in the system of classification. There are many categories or ranks and are generally referred to as taxonomic categories or taxa. All the categories constitute a taxonomic hierarchy. Taxonomists have developed a variety of taxonomical aids to facilitate identification, naming, and classification of organisms. These studies are carried out from the actual specimen which are collected from the field and preserved as the referrals in the form of herbaria, museum, and in botanical gardens and zoological park. It requires special techniques for collection and preservation of specimens in herbaria and museum. Live specimens, on the other hand, of plants and animals are found in botanical gardens or in zoological park. Taxonomists also prepare and disseminate information through manuals and monographs for further taxonomic studies. Taxonomic keys are tools that help in identification based on characteristics. अब यहाँ से हमारे क्वेश्चंस एंड आंसर्स है. ओके, चलिए हमने चैप्टर 1 कवर कर लिया है. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. और अगर आप एंड तक यहाँ तक देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच एंड आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.